Children, next topic is this we have done, straight chain carbon compounds we have done. In that category, we have saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. The compounds of carbon and hydrogen having single carbon-carbon bond were categorized as alkane, whereas the compounds of carbon and hydrogen in which carbon and carbon having double bond are known as alkene. Likewise, triple carbon-carbon triple bond for alkynes. This were the general formula for all three categories. We have discussed the number of compounds of all these three families. So the chain structure of these three categories of hydrocarbons were like this. यहाँ पर आपको लीनियर स्ट्रेट चेन मिल जाती है कंपाउंड्स में. कार्बन कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड होता है. अब हमने ये पढ़ना था कि वाई कार्बन इज़ वर्सेटाइल. तो हमने ये पढ़ा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, बिकॉज इट कैन शेयर मैक्सिमम 4 of its electrons. Now we have to see what other structural compounds, what other kind of compounds carbon can form. So other category of compounds we have for carbon compounds are branched and cyclic carbon compounds. Like with the same formula I have discussed with you people earlier also, like with the formula C4H10 butane or C4H8 butene. I can have multiple number of other compounds too. For this butene, I will be discussing about ring shaped compounds. With this formula, like this belongs to alkenes category, whatever we have learned earlier. But this, apart from this alkene category, this formula can also be written, can also be related with another category of compounds called as cyclic or ring shaped carbon compounds. तो एक ही फॉर्मूले से हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग कंपाउंड्स को राइज करते हैं, इसलिए कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाना शुरू कर देता है. और सिमिलरली इसी फॉर्मूले से C4H10 की अगर मैं बात करूं तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज कर लेता है, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्म्स में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. जैसे अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो इसी एक C4 आपके H10 से एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला निकल रहा है. तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट चेन दिख रही है, यहाँ पे चेन में ट्विस्ट आ गया, एक चेन में ब्रांच क्रिएट हो गई, तो दैट इज़ ब्रांच्ड. ये इसी फॉर्मूले से C4H10 से ही एक और कंपाउंड बन गया, ये वाला, जिसमें ब्रांचिंग हो गई कार्बन की. फॉर्मूला भले ही सेम है, बट दीज टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो विद द सेम फॉर्मूला वी हैव टू कंपाउंड्स. Likewise, for different, if you keep on increasing the number of compounds that you get will also increases. Similarly, for this category of alkene compound, alkene hydrocarbon, we have cyclic compounds also. ये जो आपका C4H8 है, इसको आप ऐसे शो कर सकते हो. बाकी जगह हाइड्रोजन लगेगी बॉन्ड्स पूरे करने के लिए. दो कार्बन के बॉन्ड्स हैं, तीसरा और चौथा हाइड्रोजन के लिए. नेक्स्ट कार्बन, 2 कार्बन के बॉन्ड्स हैं, तीसरा एक और कार्बन से, तो एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड्स पूरे. नेक्स्ट कार्बन, 1 and 1 with carbon, 2 bonds to be completed by hydrogen. Likewise for this, single bond with carbon, so next with 3 bonds of hydrogen. So यहाँ पर हमारे पास क्या है, C4H8 जो था आपका, उससे एक ये स्ट्रेट चेन बनी और इसी फॉर्मूले से हमारे पास एक इस टाइप का एक साइक्लिक कंपाउंड भी बन जाता है. तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर ब्रांच्ड एंड cyclic compounds. So first of all we will discuss about cyclic compounds. Now these cyclic compounds can also be categorized into 2 categories, saturated and unsaturated. For saturated, carbon and carbon have single bond in between. These are called as cycloalkanes. And for unsaturated, carbon and carbon may have double or triple bond. These are known as, likewise for alkene, alkyne, these are known as cycloalkenes, and these will be known as cycloalkynes. Cycloalkenes and cycloalkynes are prepared by cycloalkanes itself. So next is, what are cyclic compounds? Cyclic compounds are the compounds in which carbon atoms are arranged in ring, like what we have discussed here. ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगा, ओपन चेन नहीं होगी, हर कार्बन जो है वो 2 कार्बन एटम से जुड़ा ही होगा. तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स. अब साइक्लोएल्केन्स हमने कैटेगरी पढ़नी है, इसमें फॉर सैचुरेटेड साइक्लो कंपाउंड, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स. तो इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n है. जो फॉर्मूला है वो रिजेंबल करता है एल्कीन्स की तरह,
वो एल्कीन है, बट यहाँ जो ये कंपाउंड बन रहा है वो साइक्लो एल्कीन्स है। एल्कीन्स जो है वो लीनियर चेन है, बट साइक्लो एल्केन कैसी है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। अब जो साइक्लो एल्केन्स हैं वो n=1, n=2 यहाँ से शुरू नहीं हो सकते, क्योंकि विद 1 कार्बन एटम एंड 2 कार्बन एटम्स वी आर नॉट हैविंग अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर। लाइक इफ़ यू राइट CH2, ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कार्बन के बॉन्ड्स पूरे नहीं होंगे, मोर ओवर एक ही कार्बन है तो वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर भी नहीं बनाएगा। सिमिलरली विथ C2H4, C2 n=2 पुट करा, H4 आ गया। C2H4 में हमारे पास एक स्ट्रेट चेन आएगी, 2 कार्बन एटम से आप स्ट्रेट चेन ही बना सकते हो। और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास 2 है, तो बॉन्ड्स पूरे नहीं होंगे, तो हमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाने के साथ साथ हमें एक डबल बॉन्ड भी बनाना पड़ेगा। तो ये आपका कोई नया स्ट्रक्चर नहीं आया, दैट विल बी एल्कीन itself, C2H4 ethene itself. So these kind of closed structures are not possible with 1 and 2 carbon atoms. So let us start with n=3. We know that a triangle have 3 sides. तो उसी तरह से ये जो आपका साइक्लिक कंपाउंड है ये कब बनेगा, जब हमारे पास मिनिमम कितने कार्बन के एटम्स होंगे, 3। वो कार्बन एटम कॉर्नर्स पे एडजस्ट हो जाएंगे और कार्बन कार्बन के बीच में ये मैंने बॉन्ड्स दिखाए हैं। तो फॉर्मूला अब हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर कैसा होगा। उससे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला क्या बना इसका, n=3, तो दिस विल बी C3H6, और इसकी अब हमें क्लोज्ड चेन बनानी है। अब स्टूडेंट्स, रिंग शेप कंपाउंड में क्या एक अलग चीज़ होती है कि जो हर कार्बन एटम है वो 2 कार्बन एटम से जुड़ा होगा। जैसे स्ट्रेट चेन में ये पॉसिबल नहीं था। स्ट्रेट चेन में जो आउटर एंड्स पे आपके कार्बन एटम होते थे दे आर अटैच्ड विद सिंगल कार्बन एटम। जो कार्बन एटम इनसाइड प्रेजेंट होते थे चेन के, ओनली दे आर अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स। बट हेयर इन द केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स ईच एंड एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 2 नियरेस्ट नेबरिंग कार्बन एटम्स। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोज्ड बन जाता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग एंड्स पर, यहाँ एंड वाले कार्बन एटम पर शेयरिंग कार्बन किस कार्बन के साथ कम थी, तो हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग ज़्यादा करनी पड़ती थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन कार्बन अपने बीच में ज़्यादा बॉन्ड्स बना रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग उसकी कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स हैं, जबकि इस केस में यहाँ है हर जगह 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है इस कार्बन के साथ, नेक्स्ट बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 2 बॉन्ड्स पूरे हो गए, तो 2 बॉन्ड्स पूरे करने के लिए उसको हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरह से ये कंपाउंड्स बनते हैं। तो साइक्लिक में मैंने क्या दिखाया, कार्बन के 3 एटम्स को एक ट्राइंगल की फॉर्म में अरेंज किया मैंने। ये शॉर्टकट, ये सिंपल तरीका है, अभी इसका फिर हम शेयरिंग भी करेंगे, अभी रिंग स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर भी हम करेंगे। दिस इज बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ कार्बन कार्बन के 3 एटम्स दिखाए, कार्बन कार्बन के बीच में मैंने बॉन्ड्स दिखा दिए। पर कार्बन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर अवेलेबल, 2। सो रिप्रेजेंट दीज 2 हाइड्रोजन एटम्स विद बॉन्ड्स, बिकॉज दीज 2 हाइड्रोजन एटम्स दे ऑल्सो हैव टू फुलफिल देयर octet, complete their duplet. So by making bond with this carbon electrons, 2 of its electrons are shared with hydrogen atom. So this is how a single bond is made between 1 carbon and 2 hydrogen atoms. Likewise for others I have shown, and this structure can be written in condensed structure. condensed form में कैसा लिख सकते हैं हम इसको, CH2, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा CH2। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि कैसे कार्बन और कार्बन में शेयरिंग हो रही है, हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर है। तो रिंग स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या किया, मैंने 3 सर्कल्स बनाए। 3 कार्बन एटम है तो 3 सर्कल्स बनाए। सर्कल्स के बीच में मैंने कार्बन इंसर्ट कर दिए, हर सर्कल के ऊपर मैंने हाइड्रोजन एटम्स के लिए सर्कल्स ड्रॉ कर दिए इस तरह से। अब मेरे को सबसे पहले हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये जो हैं आपके, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए सपोज डॉट से, और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर हुआ और एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। लाइकवाइज फॉर दिस एंड लाइकवाइज फॉर ऑल दीज हाइड्रोजन एटम्स, हर एक कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो शेयरिंग पे कार्बन के पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। 5th और 6th इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना है जो कि अभी अनशेयर्ड है, वो कहाँ से शेयर करेगा, नेबरिंग कार्बन एटम से शेयर करेगा। ऐसे है ये आपका स्ट्रक्चर। अगर मैं इनको सबको डॉट्स में रिप्रेजेंट कर दूं तो ये वाला कार्बन एटम एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर रहा है
और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। सिमिलरली ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग पे लगा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग में ले रहा है। सिमिलरली ये इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो रहा है। तो इस तरह से कार्बन की शेयरिंग चल रही है। तो ओवरलैप्ड रीजन में मैंने सारे ये जो बीच में ओवरलैप्ड रीजन आया, दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये था और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये। Likewise, we do for next members of the cycloalkane series. If n equals to 4, for 4 we have butane. 4 कार्बन एटम होते हैं तो हम ब्यूट लेते हैं, बट सिंस these are cyclic compounds, so name will be written as cyclobutane, cyclic compound of butane, cyclic carbon compound, and formula will be same as that of butene, C4H8. Why alkene's formula is there but naming is for alkane? Naming is for alkane because single bonds are present in between carbon and carbon atom, but formula is resembling to alkene series because each carbon atom is sharing electrons with 2 neighboring carbon atoms. तो यहाँ इसीलिए 2 हाइड्रोजन की कमी के बाद जो वो बॉन्ड्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो कमी कैसे पूरी होती है? कार्बन अपने बीच में शेयरिंग को बढ़ा देता है। तो इसीलिए कंपाउंड स्ट्रॉन्ग क्लोज्ड स्ट्रक्चर में फ्रेम हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ यू प्लॉट साइक्लोब्यूटेन। यू मेक अ स्क्वायर लाइक अरेंजमेंट फॉर कार्बन एटम्स एंड रिप्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर carbon atoms. Along with each carbon you put 2 hydrogen atoms. So this is how bond structure for carbon cyclobutane can be represented. In condensed structural formula we have CH2 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 like this. Now let us see the ring structure of this cyclobutane. You draw 4 circles, each representing carbon atom inside that circle, and draw the atoms, draw the electrons for carbon. For this particular carbon, this is its 1 electron, this is second electron, third will be shared by hydrogen, and fourth also will be shared by hydrogen. So this is for hydrogen's electron. So by sharing electron with carbon, it is forming its duplet and it becomes stable. Likewise for other hydrogen, on each carbon atom you put 2 hydrogen and 1 electron of carbon is to be shared with hydrogen in each of the hydrogen case. Likewise for others, 1 electron from carbon and 1 of hydrogen's own. Next, अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देखते हैं। एक कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये कार्बन एक इसके साथ शेयर कर रहा है और एक इसके साथ शेयर कर रहा है। अगर आप इसमें भी देखो तो कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे आया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आया, तो शेयरिंग ऐसे हुई। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से शेयर हो रहा है और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से शेयर हो रहा है। तो एक कार्बन यहाँ इसके साथ शेयर कर रहा है। नेक्स्ट जो आपका कार्बन के बॉन्ड्स बने, अब ये क्या हुआ, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए, एक यहाँ से शेयर किया हुआ, एक इसका अपना, एक इसका अपना और एक इस कार्बन से लिया हुआ ये इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 6 8 ये जो ओवरलैप्ड रीजन कार्बन कार्बन के बीच में आया, ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो ओवरलैप्ड रीजन में आप इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, ये हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइकवाइज इस कार्बन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसका था और ये भी इलेक्ट्रॉन इसका था, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया। तो इस तरह से बाकी सारे कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स हम पूरे कर देते हैं। Likewise, you see for cyclopentane, this is pent means 5 carbon atoms are to be taken, and since it's cyclic compound, so formula will be similar to that of alkene series। 5 कार्बन एटम्स वाला जो होगा उसके जैसा होगा, C5H10। फॉर ईच कार्बन वी हैव 2 हाइड्रोजन अवेलेबल विद अस, सो structure will be that of a pentagon, like in case of cyclobutane 4 carbon atoms were to be arranged in the form of a square. For 3 carbon atoms we have a triangle, and for pentane we have a pentagon like of arrangement of carbon atoms. Likewise we have done for butane, you put 2 hydrogen atoms around each carbon and bond will be single.
this is the condensed formula for this cyclopentane, and for drawing the ring structure, the dot structure, I have marked 5 carbon atoms and 5 rings are to be taken. In that rings I have drawn carbon. अब यहाँ पर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं. इस कार्बन का 1, 2, 3 और 4 कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब शेयरिंग में कैसे होगा? शेयरिंग में ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के 2 electrons are shared by 2 hydrogen atoms and rest of the 2 electrons are to be shared with neighboring carbon atoms. So this carbon electron is to be shared with this carbon. यहाँ का ये जो अपना कार्बन एटम है वो यहाँ अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है. सिमिलरली ये वाला कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है. नाउ इफ़ यू सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कार्बन एटम 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आर कम्प्लीटली डन. नेक्स्ट लाइकवाइज फॉर दिस, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास. हाइड्रोजन के मैं इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करूँ represented by cross. You choose different pens or different symbols so as to represent different kind of electrons for different electrons for different elements. So हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए. अब इस कार्बन के 2, 4, 6, एक तो इसने यहाँ से कार्बन के साथ शेयर कर रखा है, एक यहाँ से शेयर कर रहा है और एक अब अपने नेक्स्ट नेबरिंग कार्बन एटम से शेयर करेगा. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डॉट लगा दी. सिमिलरली हम पूरी रिंग को प्लॉट कर देंगे. तो अब मेरे को जहाँ जहाँ पे कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग है वहाँ पर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं. जहाँ पर हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग है वहाँ पे भी मुझे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं. तो दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोपेंटेन. द ट्रिक इज़ यू ड्रॉ 5 rings overlapping each other. Within this overlapped region you have to represent 2 dots for representing the single bond. I am repeating again and again that single bond means 2 electrons, and when they are in overlapped region that means the bond is formed between these 2 subsequent या neighboring carbon atoms. यहाँ हाइड्रोजन को हमने ओवरलैप कर दिया. ये जो रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ये बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस तरह से हमने पूरी रिंग कंप्लीट कर दी. सिमिलरली मैं साइक्लोहेक्सेन जिसमें n का नंबर 6 है उसको मैं प्लॉट कर सकती हूँ. और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन ऑब्वियसली हेक्सेन है तो हेक्सागोनल शेप में मैंने 6 कार्बन के एटम्स अरेंज कर दिए एंड अराउंड दैट आई हैव टेकन 2 hydrogens. And for drawing ring structure or dot structure we have to draw 6 rings enclosing each other, encircling each other, and each ring the same process is to be followed. In each ring you put 1 carbon atom and in overlapped region you shoot 2 electrons, and in this small sphere, small circles you put hydrogen with 2 dots representing shared pair of electrons. अब जैसा हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स किए थे लीनियर चेन में, स्ट्रेट चेन में, उसी तरह अब हम अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं साइक्लिक चेन में. तो सैचुरेटेड साइक्लो जो कार्बन कंपाउंड्स थे वो हमने पढ़ लिए. अब हम पढ़ रहे हैं एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड का एग्जाम्पल विच इज़ C6H6 known as benzene. So this is formula for benzene. How you draw? Now you see that we have reduced the amount of hydrogen. 6 हाइड्रोजन हटा दिए. तो वो 6 हाइड्रोजन क्या प्रोवाइड कर रहे थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे थे. 6 इलेक्ट्रॉन्स का प्रोवाइड करना मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है. तो 3 पेयर मतलब 3 बॉन्ड्स. 3 बॉन्ड्स क्या हो गए हमारे पास? कम हो गए. तो कार्बन अपने वो बॉन्ड्स की जो कमी, जो 6 हाइड्रोजन के हटने से, लाइक अगर ये आपका साइक्लोहेक्सेन होता तो इसका फॉर्मूला होता C6H12 होता. तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अपनी शेयरिंग कर रहा था और सिंगल बॉन्ड्स बन रहे थे. बट यहाँ क्या हुआ कि हाइड्रोजन का अमाउंट कम हो गया, तो उससे ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो गई. वी आर left with 3 bonds less. So how does carbon cope up with this loss? वो यहाँ पे क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शेयरिंग में डाल देगा. तो इस बेंजीन में क्या होता है? इस रिंग में, इस बेंजीन रिंग के अंदर
ऑल्टरनेट पोजीशन पर, जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे, कार्बन कार्बन की आपस में शेयरिंग बढ़ जाएगी और उससे आपका बेंजीन रिंग बनेगा और हर एक कार्बन पर 6 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हो जाएंगे। अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे बॉन्ड क्यों नहीं लगा, डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगा, तो उसका एक रीज़न है कि हर कार्बन पे कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आपका कार्बन 1 2 3 and next with this carbon. So carbon is completing its 4 bonds. Likewise for this carbon atom, if you check it out, then this will be single bond with hydrogen. Next second bond, third and fourth. Next carbon. Next similarly for this carbon atom, single with hydrogen, 1 2 3 and 4. Next for this carbon, likewise you keep on counting the number of bonds, and in each and every case we find that carbon is making 4 bonds so as to complete its octet. And I have told you that hydrogen always, never ever it makes double bond, it always makes single bond. So this is how benzene structure formula can be written. Now let us see how its dot structure or how its ring or cyclic formula can be represented. The same way you have drawn the structure for this cyclohexane. You represented 6 circles for carbon atoms, and around that you have represented 2 circles for hydrogen. Now here we have to do a little bit of change. 6 carbon atoms are to be represented the same way, but instead of 2 hydrogen we are left with 1 hydrogen. हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चलेगा और कार्बन और कार्बन के बीच में 1 2 3 4 5 6 ये ओवरलैप्ड रीजन है। एक जगह हम डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे और एक जगह हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और सिंगल। तो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे हमारे पास ऐसे बॉन्ड्स आ गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांच्ड चेन कार्बन एटम्स। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने इस चैप्टर की, इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही फॉर्मूले से या एक ही नंबर ऑफ कार्बन एटम से हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ कंपाउंड्स हमें मिल जाते हैं, तो इसीलिए कार्बन वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इसको, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन के लिए मैंने देखा 4 कार्बन एटम के साथ स्ट्रेट चेन भी बन जाती है, सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बन जाता है, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड भी बन जाता है जिसको हम साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं C4H8 फॉर्मूला के साथ। और उन्हीं 4 कार्बन के एटम के साथ मेरे पास एक नया स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर आ जाता है, ब्रांच्ड चेन का स्ट्रक्चर भी आ जाता है जिसका नाम 2-मिथाइल प्रोपेन होता है। तो विद सेम 4 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन वी हैव 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब ब्रांचिंग होती क्या है? ब्रांच्ड कार्बन चेन क्या होती है जिसमें कोई भी एक कार्बन एटम 3 या 4 कार्बन एटम से सराउंडेड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं ब्रांचिंग बोलती हूँ कि यहाँ पे ये एक आपकी कार्बन की चेन है और इसमें यहाँ पे ये 2 ब्रांचेस में लगे हुए हैं, टुकड़े हो गए, मतलब यहाँ पे फ्रेगमेंट्स आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वायर लूँ, ये स्ट्रेट वायर मैंने ली और इसमें यहाँ पर मैं ऐसे नोड्स डाल दूँ और डिफरेंट वायर्स में अटैच कर दूँ तो ये इसकी ब्रांचेस लग जाती हैं। जैसे एक ट्री लिया मैंने और उस ट्री में ये एक मेन स्टेम है और इसकी यहाँ से इसकी और डिफरेंट पार्ट्स निकल रहे हैं जिसको हम उसकी ब्रांचेस बोल देते हैं। तो एक मेन सेगमेंट में, मेन पोर्शन में अगर छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट्स निकलने लगे, अटैच होने लगे साथ साथ, तो दीज आर ब्रांचेस। अब ब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए हम बात करते हैं कि ऐसी कोई कार्बन की चेन या ऐसा कोई स्ट्रक्चर कार्बन कंपाउंड का जिसमें एक मेन जो आपका सेगमेंट है, मेन जो पोर्शन है उसमें पार्ट्स कनेक्टेड हैं, जैसा इसमें आपको दिख रहा है। तो ये और ये ब्रांचेस का काम करेंगे। अगर मैं इस नोटबुक को ऐसे घुमा दूं तो ऐसा दिखेगा। अब आपको ये एक मेन चेन दिख रही है और इसके अराउंड आपको ये 2 कार्बन एटम की ब्रांचेस लगी हुई दिख रही हैं। तो ब्रांच्ड चेन बेसिकली होती क्या है? ऐसी कोई कार्बन की चेन जिसमें एक कार्बन एटम मिनिमम ऐसा होगा ही होगा जिसमें 3 या 4 कार्बन एटम सराउंडेड होंगे, अटैच्ड होंगे। अब इसका मतलब क्या है? जैसे अगर आप एक स्ट्रेट चेन देखो, ये स्ट्रेट चेन देखी हमने, स्ट्रेट में जो कॉर्नर वाले कार्बन एटम्स हैं उनमें तो एक कार्बन एटम की ही साथ में शेयरिंग है, बट यहाँ पर जो सेंटर में जो कार्बन एटम्स हैं 2, ये सराउंडेड हैं 2 कार्बन एटम से। सिमिलरली ये वाला कार्बन एटम इस और इस कार्बन एटम से सराउंडेड है। तो मिनिमम कितने कार्बन, मिनिमम या मैक्सिमम कितने सराउंडेड हैं? 2, एट मोस्ट मैक्सिमम 2 से ही सराउंडेड है।
अगर मैं यहाँ पे साइक्लिक चेन देखूँ तो ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर था, इसको मैं अगर ऐसे बॉन्ड स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो एक कार्बन एटम 2 ही कार्बन एटम से अटैच्ड है। पर ये ब्रांच्ड चेन की क्या स्पेशलिटी होती है कि एक कार्बन के पास 3 या 4 कार्बन शेयरिंग पे लगे होते हैं। जैसे अगर मैं इसको ना रिप्रेजेंट करूं, मैं चेन की ब्रांचिंग ऐसे भी दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ 1, 2, 3 कार्बन एटम्स शेयरिंग में हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रांच्ड, दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हर जो आपका कार्बन कंपाउंड है वो ब्रांचिंग पॉसिबल कर सकता है, उसके लिए ब्रांचिंग पॉसिबल है या कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है? तो येस, देयर इज़ रिक्वायरमेंट फॉर। तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्या जो हमें ब्रांचिंग अलाउ करती है कि ब्रांचिंग के लिए हमें 3 कार्बन एटम से ज़्यादा कार्बन एटम अवेलेबल होंगे अगर, तो ब्रांचिंग पॉसिबल है। तो ब्रांचिंग पॉसिबल कब नहीं है? जब हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी नया स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा एक 3 कार्बन चेन वाला एटम। तो इसको देखते हैं कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल। सपोज आई हैव रिप्रेजेंटेड अ 3 कार्बन एटम कंपाउंड। सो दिस इज़ द स्ट्रेट चेन, ये आपकी एक स्ट्रेट चेन जा रही है। अगर मैं इसमें ब्रांचिंग करने की कोशिश करूँ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सपोज़ एक वायर ली मैंने, ये आपकी स्ट्रेट चेन रिप्रेजेंट कर रही है। मैं ब्रांचिंग कैसे कर सकती हूँ? जब मैं यहाँ पे एक वायर और ऐड करूँगी या फिर एक वायर मैं यहाँ ऐड कर दूँ। बट मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने बोला कि मैं यहाँ से इस वायर को ऐसा बेंड कर दूँ, जैसे ये आपको दिख रहा है। तो ये तो सिंपल एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आपने वायर को बेंड कर दिया। तो ये एक नया स्ट्रक्चर नहीं है। जब आप इस वायर को स्ट्रेच करोगे तो ये वायर वापस से क्या हो जाएगी? स्ट्रेट हो जाएगी। तो ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग कब होगी? व्हेन आई पुट 1 कार्बन एटम इन फ्रंट ऑफ दिस सो दैट द चेन बिकम्स कंटिन्यूअस एंड दिस appears to be a fragment for this main chain. Likewise, this chain can be represented in this form also. अब आप बेंड यहाँ से ना देकर, इस साइड से ना देकर आपने बेंड कैसा कर दिया? ऐसा कर दिया। इस केस में भी क्या है आपका? इस केस में भी ब्रांचिंग नहीं हुई, सिर्फ आपने वायर को क्या कर दिया है? मोड़ दिया है। तो 3 कार्बन एटम्स के साथ हमारे पास कोई भी नया स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ये बेंडिंग हुई, ब्रांचिंग नहीं हुई। तो ब्रांचिंग कब पॉसिबल होगी मेरे पास? जब मेरे पास 4 कार्बन एटम्स होंगे। जैसे इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, 4 कार्बन एटम्स को। अगर इन 4 कार्बन एटम को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ तो ये भी ब्रांचिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। ब्रांचिंग कब होगी? जब मैं इसके आगे एक और कार्बन एटम लगा दूँ। मेन चेन में मैंने फ्रेगमेंट्स ऐड कर दिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ब्रांचिंग। तो अब हम ब्रांचिंग पढ़ेंगे और एक टर्म पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड एज आइसोमर्स। एक ही फॉर्मूला होते हुए, फॉर एग्जाम्पल C5H12 आई हैव, पेंटेन आई हैव। तो पेंटेन के इसी स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं मल्टीपल स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर पाऊँ तो वो फिनोमेना क्या कहलाता है? आइसोमरिज्म। और आइसोमर्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जिनका सेम फॉर्मूला रहे बट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहे, तो दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो हम आइसोमर्स की डिटेल पढ़ेंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एल्केन्स। आइसोमर्स पढ़ेंगे हम।